Assalamu alaikum students. Today you have first class of Pak study and my name is Amir. Today we will discuss important question that it is very important question already you have done in your previous classes in matriculation and also in intermediate. So today we will also discuss what is that and it's somewhat bit brief in this bachelor's class, so that's why you should need to make more go through with these questions. Okay, so what is that? The first question, it is here we have, what is the two nations theory? इसको अगर आप उर्दू में देखें तो let me explain you now. If you see this, that is what is the two nation theory. So it's in Urdu it is called दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है, दो कौमी नजरिए से क्या है. It is also called the ideology of Pakistan. Okay, so this ideology of Pakistan is just somewhat about a theory. Everything is based on theory, everything is based on some concept. Okay, theory means somewhat ideology. Okay, in Urdu it is also called nazriya. Okay, so why it is important to make theory? देखिए स्टूडेंट, आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके मुतालिक आप काफ़ी चीज़ें अपने माइंड में ऑब्जर्व करते हैं. तो ऑब्जर्वेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है. सो यहाँ पे जो पहली ऑब्जर्वेशन थी, दैट इज़ टू नेशन in subcontinent that are united India. You can say the two nations are live together. They are living combined, and this country state is called United India at that time. So the factors of at that time are closest to each other, and the people understand the behavior of each other. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं. फॉर एग्जांपल, Muslims and Hindus have the different religious, political, cultural and social discriminations or dissimilarities between each other. That's why the Muslims and Hindus are the two major nations that are live together in subcontinent at that time. So before partition, they live together like a united India. But as time goes, as time pass, the founder of Muslim League, Mr. Jinnah, observed that we cannot live with Hindus, and that's why there is a different theory. There are different people who are living together. So Sir Syed Ahmad Khan was the first man who actually understood about the background of the Muslim and Hindus dissimilarities, you can say discriminations. So the background is that the dissimilarities between Muslims and Hindus. Okay, so although they are living together for a lot of time, but as time goes, as time pass, there are little bit conflictions, and it makes more and more. और वो बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े फसादात और जनाब इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर जाती हैं, जिस वजह से पाकिस्तान बनने की ज़रूरत पेश आई. एक्चुअली टू नेशन थ्योरी is a background for creation of Pakistan. You should write that here, that this discrimination, facts of the background of the two nation theory is creation of Pakistan. Creation of Pakistan. If this is not happened, then we cannot say that Pakistan cannot be created in 1947. It was an act in British Raj. You can say that British government allows some people that they should unite together, but there are some discriminations, there are some dissimilarities, like some of the people get more rights, like the Hindus get good jobs, they have a good political position than Muslims, and they are not allowed to slaughter cows, and there are a lot of religious dissimilarities between both of these two nations. That's why Mr. Sir Syed Ahmad Khan observed and proposed this theory, और उन्होंने इस नजरिए को पेश किया, और उनका कहना यह था
कि दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती, although they are living together, although they are living from so many previous time, काफ़ी अरसे से पीछे से ये इकट्ठे चलते आ रहे हैं, लेकिन इनकी बैकग्राउंड, इनका मज़हब, इनकी इकोनॉमी, इनकी पॉलिटिकल पोजीशन डिफरेंट है, इनका कल्चर डिफरेंट है, दैट्स वाई दे कैन नॉट लिव टुगेदर। और इस नेशन थ्योरी में आगे चल के 1940 में व्हेन वाज जिन्नास रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यू कैन से, इन 1940, तो 1940 में ये अपनी पूरी तरह से वो पकड़ चुकी थी, अपनी स्पीक पकड़ चुकी थी, और नेशन को इस मामले में गाइड किया जा चुका था कि वी नीड अ न्यू नेशन, वी नीड अ न्यू कंट्री दैट विल बी पाकिस्तान। और इसको हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम भी कहते हैं, क्योंकि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ओनली बेस्ड ऑन इस्लाम। सो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो इस्लाम है, पाकिस्तान का जो नज़रिया है। या समटाइम इफ क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज़ द what do you mean by the ideology of पाकिस्तान, सो इसका आंसर है द ideology of पाकिस्तान इज़ इस्लाम। पाकिस्तान के नज़रिए से मुराद इस्लाम है, बिकॉज पाकिस्तान बेसिकली इस मकसद, इस नज़रिए के ऊपर बनाया गया है कि इसमें हम जो मुस्लिम्स हैं वो अपने तमाम इस्लामिक कल्चर्स को अडॉप्ट करेंगे, और ना सिर्फ अडॉप्ट करेंगे बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको प्रेजेंट भी करेंगे। सो दैट्स वाई ये नज़रिया जो था नेशन थ्योरी, इट्स मेक्स मोर importance for Muslim at that time. Okay, let me tell you about something. Founder, as I told you, Sir Syed Ahmad Khan was a founder of this two nation theory. He proposed this theory in the 18th century, or maybe in the last of the 19th century, you can say. And after that, the result, what is the result of that theory? The result is very similar. Result is very beyond its expectation. People did not accept that there will be a creation of Pakistan. लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि एक ब्रिटिश राज, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद जो इतने अर्से से यहाँ सब कॉन्टिनेंट में रह रही थी और सब कुछ सेटलमेंट थी उनके यहाँ पे, उनके सारा असर रसूख था, उसके बाद नेक्स्ट जो था वो मेजॉरिटी जो है, मेजर जो पॉपुलेशन थी वो हिंदूज पॉपुलेशन थी। तो पीपल और जो दुनिया के जो लोग हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टेड दिस थिंग दैट पाकिस्तान कैन बी क्रिएटेड, पाकिस्तान बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस टू नेशन थ्योरी, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ये बिलीव था कि वी जस्ट नीड एन सेपरेट country, we should need a separate homeland, we don't want to live with Hindus, we don't want to live with the same discrimination culture. शायद अभी हमें इस बात को इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी हम बट आई कैन से वी आर नॉट इन द पास्ट हिस्ट्री, वी आर नॉट इन द ओल्ड टाइम। सो हम एक आज़ाद कंट्री में हैं, पाकिस्तान में जब आज़ादी समझ लें कि हम आज़ादी की जो ना वो उसकी नेमत ले रहे हैं, तो जो लोग पहले बिफोर पाकिस्तान 1947 से पहले थे, उन लोगों के लिए टू नेशन थ्योरी उनकी बेस थी, उनका सोल ऑफ कंटेंट था, जिस पे वो जीते थे, जिसके ऊपर वो काम करते थे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो एक आज़ाद और इस्लामी रियासत में सांस लेगी। और ऐसा दिस थिंग कम्स ट्रू, और ये मुमकिन की हुआ, और टू नेशन थ्योरी ही जो है वो बेस बनी पाकिस्तान के क्रिएशन की, और ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी है। अच्छा, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको मेंशन करना है, इसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे मैंने भी इसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड बताया, मैंने फाउंडर्स के बारे में बताया और रिजल्ट्स बताया। फाउंडर्स में मुस्लिम लीग के जो बड़े जो मुस्लिम लीग ऑफ ऑल ओवर इंडिया जो थी, मुस्लिम लीग ऑफ पाकिस्तान यू कैन से, इन्होंने सबसे पहले प्रेजेंटिंग वर्क किया कि इन्होंने इसको इस थ्योरी को गिवन किया, प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश, इन फ्रंट ऑफ हिंदूज, ताकि मुस्लिम जो हैं उनकी भी, ऑल द मुस्लिम आर मिनॉरिटी एट दैट टाइम, मुस्लिम उस टाइम पे मिनॉरिटी में थे, बिकॉज मेजॉरिटी वाज हिंदू एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो बट रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक एज जिन्ना प्रेजेंट द केस ऑफ मुस्लिम्स, सो ऑल टाइम बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान there was Lord Mountbatten who comes and said, I am here to represent the British government, and Jinnah told to him that I am here to represent the Muslim community. So Muslim community को represent करने के लिए मिस्टर जिन्ना ने अपना जो है वो टू नेशन थ्योरी को ही बेस बनाया, और इस्लामिक नेशन के लिए तो गदो की, और जो है आज हम एक सेपरेट होमलैंड में हैं,
और बिफोर 1947 कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इट इज़ नॉट गुड बिकॉज पाकिस्तान इज वी कैन नॉट, आई टोल्ड यू कि पाकिस्तान कुड नॉट बी सर्वाइव आफ्टर पार्टीशन के कुछ टाइम के लिए। और इवन के मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज भी कहते थे उस टाइम पे कि पाकिस्तान जो है आफ्टर क्रिएशन कुछ टाइम के लिए 1-2 साल रहेगा, उसके बाद दोबारा इसको इंडिया के आगे झुकना पड़ेगा और इसको दोबारा से हमारे साथ मर्ज होना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ जो एक्सपेक्टेशन थी वो गलत साबित हुई और वी आर 70 ईयर्स, तकरीबन 70+ ईयर्स हो गए पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट हुए। तो इस इंडिपेंडेंस की जो बेस है, जो उसकी स्क्रीन रूट है, जो कोर रूट है, दैट इज टू नेशन थ्योरी। सो वी कैन से दिस इज द मेन कोर ऑफ डिफरेंशिएशन एंड main part of partition of Pakistan. So that what we can have the separation of these two different nations, and Pakistan is to be independent at 1947 because of this two nation theory. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये मैंने आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करवा दिया है। मैं इसके बारे में कुछ आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो बताऊंगा, आपको सिलेबस भी गाइड करूंगा, आपके क्वेश्चंस किस तरह होंगे, उनकी पार्टीशन क्या है, उनके मार्क्स कितने होंगे, उनको आपने लिखना कैसे है। ये एक जनरल फर्स्ट लेक्चर था। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। इफ यू नॉट यू कैन आस्क मी बाय सेंडिंग मैसेज इंशाल्लाह, सो आई विल गिव यू गुड फीडबैक इंशाल्लाह। ओके, सो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। और इसको जब आपको अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, आई विल प्रोवाइड यू सम नोट्स ऑफ माइन so that you can prepare your questions. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.